اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے محترم بزرگوں دوستوں میرے بھائیوں، یہ سچ والا نیا فتنہ لے کے آیا، نئی بات لے کے آیا ہے نفرت پھیلانے کے لیے۔ کیا کہتا ہے اسلام؟ مسلمانوں کے لیے ملک پہلے یا مذہب؟ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آج بتائیں گے ملک پہلے یا مذہب۔ تو پہلے ویڈیو پلے کرتے ہیں جلدی فٹافٹ، انشاءاللہ پھر اس کے بعد میں اپنی دلیلیں پیش کروں گا۔ حالانکہ مولانا صاحب نے زبان سے دی مگر دلیلیں نہیں دی ہیں، انشاءاللہ اس ویڈیو میں دلیلیں دوں گا۔ مسلم ہیں اور ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیو میں، اور انشاءاللہ ساری دلیلیں قرآن سے دوں گا۔ محمد صدیقی صاحب۔ قاضی محمد صدیقی صاحب، پہلے میں آپ کے پاس آؤں گی، یہ بتائیے کہ اسلام دھرم میں کیا مذہب کو پہلے بتایا گیا ہے اور دیش کے پرتی فرض کو بعد میں؟ دیکھیں، مذہب اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک بحیثیت مسلمان آپ جس دیش میں رہیں، چاہے وہ دیش کون سا بھی، چاہے وہ آپ کسی بھی ملک میں کسی بھی کنٹری میں رہیں، مذہب اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ اس ملک کے تحت آپ کی وفاداری ہونی چاہیے، یہ سکھاتا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ آپ کسی بھی ملک میں رہیے، اس ملک کے خلاف آپ کے دل میں وفاداری ہونی چاہیے۔ دلیل تو انہوں نے نہیں دی ہے، حدیثوں کا بتائے مگر اس کا بھی انہوں نے نمبر اور ریفرنس نہیں دیے، اس لیے وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ انشاءاللہ میں قرآن سے بتا دوں گا اور مولانا صاحب کی یہ بات کو سچ ثابت کر دوں گا کہ مسلمان جس دیش میں بھی رہے، جس ملک میں بھی رہے، اس کو اس کے پرتی محبت اور وفاداری ہونی ضروری ہے، اور اپنے ملک کی تو بات ہی الگ ہے۔ انشاءاللہ اس بارے میں بھی بتاؤں گا، قرآن ہر سوال کا جواب۔ یہی اسلام ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ جس مٹی میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، وہاں کے قانون کی آپ کو عمل کرنا ہوگا، وہاں آپ اسلام پر عمل کرتے ہوئے، اسلام مسلمان بیسک اسلام پر عمل کرتے ہوئے آپ اس ملک کے خلاف کبھی بھی غداری نہیں کر سکتے، یہ اسلام سکھاتا ہے ہمیں۔ بے شک مولانا صاحب نے یہ حق بات کہی ہے کہ آپ غداری نہیں کر سکتے کسی ملک سے، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اس کی دلیل میں دوں گا انشاءاللہ، میں بتاؤں گا قرآن سے۔ جی ایسا نہیں ہے کہ اسلام جی سچوالا صاحب، کیا اسلام میں ایک مسلمان کے لیے کیا بتایا گیا ہے کہ بھئی میرے لیے میرا ملک پہلے ہے، کیا اللہ پہلے؟ دیکھیے، اس بارے میں ڈائریکٹلی قرآن کے ورسز پہ آتا ہوں، میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، میں ڈائریکٹلی قرآن کے ٹیکسٹ پر آ کر جو ہے جو بات کہوں گا۔ قرآن اس بارے میں یا جو ہے اسلام اس بارے میں بالکل کلیئر ہے۔ دیکھیں، یہ اسلام کا جو کور میسج ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہاں پر اللہ کا راج چلے گا، رول جو ہے اللہ کا چلے گا، اور رواج یعنی کسٹم جو ہے اس کا رسول کا چلے گا۔ یہ بات صرف بھارت کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ پوری دنیا کے لیے جو اسلام کا جو ہے جو سوچنا ہے وہ یہ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کا نظام خداوندی یا جس خدا کی وہ بات کرتا ہے اور جس دین کی یا جس سسٹم کی وہ بات کرتا ہے، پوری دنیا پر اس کو چھا جانا ہے۔ اس تعلق سے میں ایک سورہ توبہ کی آپ لوگوں کو آیت کا ترجمہ سناتا ہوں، جس میں اللہ فرماتا ہے کافر سوچتے ہیں کہ میرے نور کو پھونک مار کے بجھا دیں، اور میں ہوں کہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، چاہے کافر ناخوشی ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے، چاہے کافر ناخوشی ہو، چاہے انہیں کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ تو میرے بھائیو، یہ بات تو ہے کہ اسلام تو غالب ہو کر رہے گا۔ انشاءاللہ ویڈیو پلے کر دیں اور انشاءاللہ سچ والے کی باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 32 کا ترجمہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنایا۔ قرآن میں 20 آیتیں ہیں۔ قرآن اس بارے میں بھی کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن يتولهم منكم فاولئک هم الظالمون قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ یعنی یہ جو باتیں قرآن میں آئی ہیں جا بجا کئی جگہوں پر، اس سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ قرآن کی نظر میں سب سے پہلے یا اسلام کی نظر میں سب سے پہلے اسلام ہے، باقی ساری چیزیں۔ قرآن تو پہلی بات تو یا جو ہے یا وطن کا کہیں ذکر ہی نہیں کرتا، پورے قرآن میں وطن کا کوئی لفظ کوئی ذکر نہیں پایا جاتا۔ سب سے پہلی بات نوٹ کریے میرے بھائی، پورے قرآن میں وطن کا، ملک کا کوئی ذکر نہیں پایا جاتا۔ اللہ کا شکر ہے، یہ
क्या बोलते, कुरान करीम में इतना ज़िक्र है वतन का, मुल्क का, कि मैं अगर नोटबुक लिखना चाहूँ तो एक नोटबुक भर जाएगी। मगर मेरे भाइयों, कुरान करीम में फरमाता है हमने इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया ताकि देख ना सके, समझ ना सके। इंशाल्लाह चलिए आज इस वीडियो में इंशाल्लाह इसकी पोल खोलेंगे। इस्लाम और कुरान के नजदीक वो इस्लाम है, दीन है, बाकी सारी चीजें सेकंड या थर्ड ग्रेड में आई। ठीक है सचवाला साहब, आपने कुरान का हवाला दिया है बाकायदा, जो टेक्स्ट मैं तो समझ नहीं सकती हूँ। हमारे साथ सिद्दीकी साहब हैं, काजी मोहम्मद सिद्दीकी साहब, जाहिर सी बात है उन्होंने उसको बेहतर ढंग से समझा होगा। काजी मोहम्मद सिद्दीकी साहब ये हवाला दे रहे हैं, इनके हवाले को अगर आप या तो खारिज करें या अप्रूव करें, क्योंकि इनके मुताबिक सबसे पहले अल्लाह है, सबसे पहले दीन है, मुल्क का कोई जिक्र ही नहीं है कुरान वतन इनके मुताबिक क्या, हर मुसलमान के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह है, सबसे पहले उसका धर्म है। इंशाल्लाह मैं दलील से साबित करूंगा। पहले हम थोड़ी और वीडियो सुन लेते हैं, का कोई जिक्र ही नहीं। एक बात का जवाब देंगे इंशाल्लाह। जिस मजहब को लाए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पहले उनको मानते हैं। उन्होंने जो कुरान को लाया उसको मानते हैं, उन्होंने जो हदीस बयान किया उसको मानते हैं, उनकी सीरत को हम मानते हैं। खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता ये कहा है, रिवायतों में आता है, अहादीस मुबारका है, कुरान जैसा वही है, अहादीस मुबारका भी वही है, इलाही है, ये याद रखना चाहिए। एक वही मतलू है तो गैर मतलू है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की वफादारी हमारे लिए जरूरी है। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ की वफादारी, यकीनन हम अल्लाह को मानते हैं, यकीनन हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, और उन्होंने जो दीन को लाया, उन्होंने जो मजहब को लाया, हम उस पर यकीन रखते हैं। वही इस्लाम, वही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि तुम जहाँ जिस मुल्क में रहते हो वहाँ की वफादारी। लेकिन सचवाला साहब कह रहे हैं कि मुल्क का तो जिक्र ही नहीं है कुरान और हदीस में, वतन का तो जिक्र ही नहीं है। तो आपने कौन सी कुरान और हदीस पढ़ी और उन्होंने कौन सी? बिल्कुल हदीस में देखिए, उन्होंने पता नहीं, मुझे उनका नहीं पता, और मैं उनका चेहरा भी नहीं देख सक रहा हूँ, ठीक है, और वो कहाँ के स्कॉलर है वो मुझे उसकी इत्तला नहीं है। लेकिन याद रखिए, ये कहाँ के स्कॉलर है, मौलाना साहब को भी इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं बता दूंगा। हर मुसलमान जो सच्चे मजहब को, कुरान और हदीस दोनों को मानता है, सिर्फ एक को नहीं, कुरान और हदीस को दोनों को मानना होता है। जब तक कि आप हुजूर को नहीं मानेंगे तो आप कुरान को सही समझ नहीं सकेंगे। जब तक कि आप सहाबा को नहीं समझेंगे, आप कुरान को सही तरह से आप बयान नहीं कर सकेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बाज़ाब्ता ये कहते हैं कि तुम जिस मुल्क में रहो उस वतन की मोहब्बत तुम्हारे लिए जरूरी है, उस वतन की मोहब्बत और उस पर उसके कानून पर भी अमल करना ये हमारे लिए जरूरी है। किसी आयत का हवाला दे सकते हैं आप, किसी हदीस में लिखा उसका हवाला दे सकते हैं साहब, काजी मोहम्मद सिद्दीकी साहब? बिल्कुल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता ये कहा है कि आप जिस वतन में रहते हैं उस वतन की मर्दारी हम नहीं कर सकते। आपको एक हवाला दूंगा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना हिजरत लेके गए, हिस्ट्री में मौजूद है, वहाँ पर सिर्फ मुसलमान नहीं थे। काजी मोहम्मद साहब ये पूछ रही हूँ, कौन सी हदीस में लिखा है, किस वॉल्यूम में लिखा है, कुछ कोट कर सकते हैं आप? क्योंकि सतवाला साहब ने शायद कुछ कोट करके बताया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनका काउंट। तो मेरे भाई चलिए, हमें हमारा सवाल मिल गया, जिस मुल्क में रहते हो उससे मोहब्बत करो, ये करो, कहाँ से साबित करेंगे, कौन सी हदीस में लिखा है, कौन से कोट? भाई मेरा कुछ चैनल तो कुरान हर सवाल का जवाब है, तो इंशाल्लाह मैं कुरान से ही साबित कर दूंगा, कुरान से ही दलील दे दूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हर दलील मैं कुरान से दे देता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। चलिए मैं बताता हूँ कि जिस मुल्क में रहते हैं उससे वफादारी, उससे मोहब्बत क्यों करना चाहिए, कुरान से बताता हूँ मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों, सूरह यूसुफ में हम देखेंगे कि दूसरे मुल्क के प्रति वफादारी और मोहब्बत कैसी होनी चाहिए और इंसाफ कैसा होना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में हम पढ़ेंगे और सच वालों को दलील देंगे। कह रहा था ना कि मुल्क का कोई ज़िक्र नहीं, वतन का कोई ज़िक्र नहीं कुरान करीम में। तो देखिए मेरे भाइयों, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ सब हो गया, जुलेखा ने उन पर चाल चली, मोहब्बत के जाल फेंके, सब कुछ करा, जेल खाने में रहे यूसुफ अलैहिस्सलाम। पूरा वाक़या तो नहीं पढ़ूंगा मगर अपने मेन टॉपिक में आता हूँ। तो जब बादशाह ने देखा, उनको सपने की ताबीर बताई, तो बादशाह ने देखो यहाँ पे क्या कहा, मेरा परवरदिगार रहम करे, बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे अपना ख़ास मुनासिब बनाऊँगा, मुसाहिब बनाऊँगा। फिर जब उनसे बातें की तो कहा कि आज तुम हमारे यहाँ दर्जे वाले और एतबार वाले हो। यूसुफ ने कहा, मुझे इस मुल्क के ख़जाने पर मुकर्रर कर दीजिए, क्योंकि मैं हिफाजत भी कर सकता हूँ और इस काम को जानता हूँ। क्या कहा कि मुझे इस मुल्क के ख़जाने पर मुकर्रर कर दीजिए, नौकरी मांगी। तो मेरे भाई दूसरे मुल्क में, और देखिए वफ़ादारी देखिए मेरे भाई, इस वाक़ये में हम पढ़ेंगे और सच वालों को दिखाएंगे इंशाअल्लाह
इस तरह हमने यूसुफ को मुल्क मिस्र में जगह दी। और सच वाला कहता है कि कुरान में मुल्क का जिक्र नहीं, इसका जिक्र नहीं, उसका जिक्र नहीं। अल्लाह बेशक अल्लाह सही फरमाता है कि हमने इनकी आंखों पे पर्दा डाल दिया है और वे उस मुल्क में जहाँ चाहते थे रहते थे। हम अपनी रहमत जिस पर चाहते हैं करते हैं और नेक लोगों के अर्ज को बर्बाद नहीं करते। और जो लोग ईमान लाए और डरते हैं उनके लिए आखिरत का अजर बहुत बेहतर है। और यूसुफ के भाई कनान मिस्र में गल्ला खरीदने आए तो यूसुफ के पास गए तो यूसुफ ने उनको पहचान लिया और वे उनको पहचान न सके। जब यूसुफ ने उनके लिए उनका सामान तैयार कर दिया तो कहा कि फिर आना, तो जो बाप की तरफ से तुम्हारा एक और भाई है उसे भी मेरे पास ले आना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाप भी पूरी पूरी कर देता हूँ और मेहरबानी भी और मेहमानदारी भी खूब करता हूँ। उनके भाई उन्हें पहचान नहीं पाए क्योंकि उन्होंने बचपन में उन्हें कुएं में डाला था और अभी वे जवान हो गए और बादशाह के यहाँ खजाने पे मुकर्रर है। क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाप भी पूरी पूरी देता हूँ और मेहमानदारी भी खूब करता हूँ। देखिए मेरे भाइयों, किस तरह एक ईमान वाले बंदे यूसुफ अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर दूसरे मुल्क में रहकर काम कर रहे हैं और नाप भी पूरी पूरी देता हूँ और ईमानदारी भी खूब करता हूँ दूसरे मुल्क में। हाँ, और अगर तुम उसे मेरे पास न लाओ तो तुम्हें मेरे यहाँ से गल्ला मिलेगा, तो ना तो तुम्हें मेरे यहाँ से गल्ला मिलेगा और ना तुम मेरे पास ही आ सकोगे। उन्होंने कहा, हम उसके बारे में उसके वालिद से तज़किरा करेंगे और ये काम हम करके रहेंगे। और यूसुफ ने अपने नौकरों से कहा कि उनका सरमाया यानी गल्ले की कीमत उनके शलीते में रख दो। अजब नहीं कि जब ये अपने बाल बच्चों में जाएं तो उसे पहचान लें, और अजब नहीं कि ये फिर वहाँ वापस आएँ। और जब वे अपने बाप के पास वापस गए तो कहने लगे कि अब्बा, जब तक हम बिन यामीन को साथ में ले जाएं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, हमारे लिए गल्ले की पाबंदी कर दी गई है, तो हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए ताकि हम फिर अनाज लाएं और हम इसके निगहबान हैं। याकूब ने कहा, इसके बारे में तुम्हारा एतबार नहीं करता, मगर वैसा ही जैसे पहले इसके भाई के बारे में किया था। सो खुदा ही बेहतर निगहबान है और वे सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। तो मेरे भाइयों, थोड़ा मैंने वाक़या यूसुफ अलैहिस्सलाम का कट कर दिया। मेन टॉपिक की मेन बात आप लोगों को बताता हूँ। फिर जब वे लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई को वापस अपने साथ लेके आए तो देखिए वहाँ जब क्या वाक़या हुआ। जब वे लोग यूसुफ के पास पहुँचे तो यूसुफ ने अपने सगे भाई को अपने पास जगह दी और कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो जो सलूकी हमारे साथ करते रहे हैं इस पर अफसोस न करना। जब उनका सामान तैयार कर दिया और अपने भाई के शरीते में गिलास रख दिया, जब वे आबादी से बाहर निकल गए तो एक पुकारने वाले ने आवाज़ दी कि काफिलों वालों, तुम तो चोर हो। वे उनकी तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगे, तुम्हारी क्या चीज़ चोरी हो गई? वे बोले कि बादशाह के पानी पीने का गिलास खो गया है और जो शख्स उसको ले आए उसके लिए 1 ऊँट बोझ इनाम, और मैं उसका ज़ामिन हूँ। वे कहने लगे, खुदा की कसम, तुमको मालूम है कि हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि खराबी करें। क्या फरमा रहे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कि हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि खराबी करें और न हम चोरी किया करते हैं। बोले कि अगर तुम झूठे निकले यानी चोरी साबित हुई तो उसकी सज़ा क्या है? उन्होंने कहा कि उसकी सज़ा ये है कि जिसके शलीते में वे मिले वही उसका बदला करार दिया जाए। हम जालिमों को यही सज़ा दिया करते हैं। फिर यूसुफ ने अपने भाई के शलीते में पहले उनके शलीतों को देखना शुरू किया, फिर अपने भाई के शलीते में से उसको निकाल लिया, मतलब अपने भाई के शलीते में से गिलास को निकाल लिया ताकि वह अपने भाई को अपने पास रख सके। इस तरह हमने यूसुफ के लिए तदबीर की, वरना बादशाह के कानून के मुताबिक, देखिए मेरे भाई मेन टॉपिक यहाँ आ गया, बादशाह के कानून के मुताबिक वे खुदा की मशीयत के सिवा अपने भाई को नहीं ले सकते थे। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद करते हैं, क्योंकि बादशाह का कानून था। यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको फॉलो कर रहे थे बादशाह के कानून को, कि बादशाह के कानून में खलल ना आए, एकदम ईमानदारी से मेरे भाइयों। इस तरह देखिए मेरे भाइयों, शर्त के सिवा अपने भाई को नहीं ले सकते थे। जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद करते हैं और हर इल्म वाले से दूसरा इल्म वाला बढ़कर है। यूसुफ के भाइयों ने कहा कि अगर इसने चोरी की हो तो अजब नहीं कि इसके एक भाई ने भी पहले चोरी की थी। तो खैर मैं अभी नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ तक आगे, यहाँ हमारी दलील पूरी होगी, आगे वीडियो और पूरी करने का है। तो मेरे भाइयों देखा, बादशाह के कानून के मुताबिक खुदा की मशीयत के सिवा अपने भाई को नहीं ले सकते थे। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद करते हैं। तो मेरे भाइयों यहाँ से साबित हुआ, हम जिस मुल्क में भी रहें, जहाँ भी रहें, ईमानदारी ज़रूरी है, उस मुल्क की वफादारी ज़रूरी है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खूब निभा के दिखाई दूसरे मुल्क में बादशाह की बादशाहत के नीचे काम करके। देखिए मेरे भाई, तो ये सच वाला ना हमारी जान का दुश्मन ना माल का दुश्मन, ये हमारे ईमान का दुश्मन। तो मेरे भाइयों अगर देखा जाए ना तो कुरान में बहुत सारी आयतें हैं। मिसाल के तौर पर जैसे देखो, हिंदू धर्म में घर वापसी करो, CAA NRC से छुटकारा पाओ। देखो मेरे भाइयों क्या फरमाता है। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, अपने वक्त के पैगंबर से कहने लगे हम तुमको अपनी सरजमी से ज़रूर निकाल बाहर कर देंगे, मतलब अपने मुल्क से ज़रूर बाहर निकाल देंगे, यहाँ तक कि फिर तुम हमारे मज़हब की तरफ पलट आओ। तो उनके परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि तुम घबराओ नहीं, हम उन सरकश लोगों को ज़रूर बर्बाद करेंगे, उनकी हलाकत के बाद ज़रूर तुमको इस सरजमी में बसाएंगे। ये वादा महज उस शख्स से है जो हमारी बारगाह में अमाल की जवाबदेही में खड़े होने से डरे और हमारे अज़ाब से खौफ खाए। और उन पैगंबर ने हमसे अपनी फ़तह की दुआ मांगी, आखिर वे पूरी हुई
और हर एक सरकश अदावत रखने वाला हलाक हुआ। ये तो उनकी सज़ा थी और उनके पीछे पीछे जहन्नम है और इसमें पीप लहू भरा हुआ है और पीने पानी दिया जाएगा। लहू भरा हुआ है और पानी पीने को दिया जाएगा। पीप लहू भरा हुआ पानी पीने को दिया जाएगा। सूरह इब्राहिम आयत 14। सूरह इब्राहिम से याद आया मेरे भाइयों, सूरह इब्राहिम की दुआ है, मैं वो भी सुनाता हूँ आप लोगों को। सूरह बकरा की 126 नंबर आयत में क्या फरमाते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, और जब इब्राहिम ने दुआ की परवरदिगार इस जगह को अमन का शहर बना दे और इसके रहने वालों में से जो खुदा पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए उनके खाने को मेवे अता कर। तो खुदा ने फरमाया जो काफिर होगा मैं उसको भी किसी कदर मुतमत्तई करूँगा, मतलब फ़ायदा पहुँचाऊँगा। मतलब क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि इस शहर को अमन की जगह बना दें, क्योंकि उनके बाल बच्चे रहते हैं, हमारे भी बाल बच्चे रहते हैं। हम अपनी जगह को थोड़ा चाहेंगे कि अल्लाह इसको नर्क बना दे। हम भी दुआ करेंगे, हम भी दुआ कर सकते हैं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने देश, अपने वतन, अपने शहर के लिए दुआ कर सकते हैं, तो मेरे भाइयों हम लोग भी कर सकते हैं अपने हिंदुस्तान के लिए दुआ। अपने हिंदुस्तान के अमन व शांति के लिए दुआ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? और दुआ करनी चाहिए। इस जगह को अमन का शहर बना दे, इसके रहने वालों में से खुदा पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए उनको खाने को मेवे अता कर। तो खुदा ने फरमाया, यहाँ ईमान वालों की बात कर रहा था। कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ईमान वालों को खाने के मेवे अता कर। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? जो काफिर होगा मैं उसे भी किसी कदर फ़ायदा पहुँचाऊँगा। क्या? काफिर को भी अल्लाह ताला खिलाएगा, उसे भी फ़ायदा पहुँचाऊँगा। तो मेरे भाइयों हम अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गाँव के लिए दुआ कर सकते हैं, और दुआ करनी भी चाहिए मेरे भाइयों, और अल्लाह दुआ का कबूल करने वाला है। तो चलिए इंशाल्लाह और भी हवाले देने को तो दे सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब बात आती है कि धर्म बड़ा या देश बड़ा। तो मेरे भाइयों अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह का दीन सबसे बड़ा। दूसरा पॉइंट था कि इस्लाम में मुल्क पहले या अल्लाह। तो मेरे भाइयों इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, साफ साफ कि अल्लाह बड़ा है, बाकी सब बाद में। अल्लाह का धर्म सबसे बड़ा है, उसके बाद में सारी चीज़ें होती हैं। माँ ना बाप ना भाई ना बहन अल्लाह के दीन के सामने, धर्म के सामने कोई अहमियत नहीं रखता है। मेरे भाइयों ये साफ़ और खुली बात है। और ये धार्मिक लोगों के, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म हो, धार्मिकों के नज़दीक, धर्म मानने वालों के नज़दीक सबसे बड़ा उन लोगों के लिए उनका धर्म है, चाहे कोई भी धर्म का हो मेरे भाइयों। एग्जाम्पल, दलील मैं देता हूँ। तो मेरे भाइयों इस वीडियो में देखते हैं हम कि धर्म बड़ा। इस पाप का प्रायश्चित कैसे करोगे कृष्णा भट्ट? क्या सबूत है राव कि शिवा भट्ट की हत्या कृष्णा जी भट्ट ने करवाई है? मां साहेब, इस पाप का प्रायश्चित कैसे करोगे? कैसा प्रायश्चित, कैसी सजा? जो धर्म के विरुद्ध जाएगा उसका यही अंजाम होगा। तकदीर तुम्हारी उस यवनी की जो बच गई, वरना धर्म के नाम पर उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाते। सुना मेरे भाइयों, ये वीडियो देख के आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म का अहमियत क्या होती है। हर ज़माने में, हर उसमें मेरे भाइयों धर्म सबसे बड़ा है। इतिहास गवाह है, क्योंकि कुरान करीम अल्लाह फरमाता है तुमसे वही बात बताई जाती है जो तुमसे पहले लोगों को बताई गई थी। और ये सच वाला मुसलमान को टारगेट क्यों कर रहा है मेरे भाइयों? चाहता तो इन लोगों को भी टारगेट कर सकता था। इसमें तो अधर्मियों के लिए श्री कृष्ण जी ने कहा, जब जब पृथ्वी पे अधर्म बढ़ेगा मैं धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार जन्म लूँगा और अधर्मियों का नाश करूँगा। मगर सचवाला जी को इससे तकलीफ़ नहीं होती। सचवाला को तकलीफ़ मुसलमानों से है कि इस्लाम धर्म फैल रहा है, बढ़ रहा है, इसे रोका जाए। क्योंकि इस्लाम के पास ईमान की दौलत है मेरे भाइयों। क्योंकि शैतान जानता है कि दूसरे धर्म के लोग तो है ही पैदल, कि उनका कुछ लेना देना नहीं, मगर एक मुसलमान जिसके पास ईमान की दौलत है, आज दुनिया टारगेट मुसलमान को ही कर रही है। हर जगह मुसलमान मुसलमान मुसलमान, बस इनका ईमान छीन लिया जाए कैसे भी करके। और किसी के पास तो ईमान बचा ही नहीं, सिर्फ इस्लाम मुसलमानों के पास जो ईमान बचा है। तो शैतान की मेहनत वही है कि बस मुसलमानों को कैसे भी ईमान छीन लिया जाए। तो मेरे भाइयों अपने ईमान की हिफाजत करें, अल्लाह की बातें सुना करें, ईमान ताज़ा होगा। शैतान वसवसा डालने वाले की बुराई से अल्लाह की पनाह मांगा करो, चाहे वो इंसानों में से हो चाहे जिनों में से। और मेरे भाइयों शैतान ने तो वादा किया था कि मैं दाएं से बाएं से हर तरफ से आऊँगा, इनकी राह मारूंगा, तो इनमें से किसी को भी शुक्रगुजार ना पाएगा। खुदा ने फरमाया जो कोई भी इनमें से तेरी पैरवी करेगा तुझको और इन सबको मैं जहन्नम से भर दूंगा। हाँ मेरे मोमिन बंदों पे तेरा जोर चलना मुश्किल है सिवाय कुछ लोगों के। तो मेरे भाइयों वही शैतान है ना अपना काम कर रहा है, दाएं से बाएं से हर तरफ से आ रहा है, राह मार रहा है, ईमान छीनने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे भाइयों अपने ईमान की हिफाजत करें, अल्लाह से तौबा करें। इंशाअल्लाह इनको तो जवाबात देते रहेंगे। कुरान हर सवाल का जवाब हर कोई कुरान के आगे बढ़ कर बोल नहीं सकता। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। और हाँ मौलाना साहब ने भी एक सवाल किया था कि ये सचवाला है कौन? को सचवाला मौलाना जानते नहीं इसकी हकीकत को। तो मौलाना साहब सूरह अराफ में अल्लाह फरमाता है, भला तुमने उस शख्स को देखा जिसको हमने अपनी आयतें अता की
تو اس نے ان کو اتار دیا. پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی. سختی کرو تو بھی زبان نکالے رہے, یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے. یہی مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کرے. تو میرے بھائی مولانا صدیقی صاحب یہ وہی بندہ ہے جس کو اللہ نے اپنی آیتیں عطا کی تو اس نے اتار دیا. تو اس نے بھی اللہ کی آیتوں کو اتار دیا, اور تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی, اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. اور شیطان کا کام ہی ہے ایمان چھیننا. چلیے میرے بھائی, السلام علیکم. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.